Assalamualaikum class 9. I hope you're all fine. Freezing point. When liquids are cooled, जब liquids को ठंडा करते हैं तो vapor pressure of liquid decreases. तो liquids का vapor pressure decrease करता है and a stage reaches, और एक stage reach करता है when vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid state. जब liquids का vapor pressure जो है solids के vapor pressure के equal हो जाता है. At this temperature, liquid and solid coexist in dynamic equilibrium. इस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड जो है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. डिफ्यूजन. The liquid molecules are always in state of continuous motion. जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन की स्टेट में होता है. They move from higher concentration to lower concentration. वो higher concentration से lower concentration की तरफ मूव करते हैं. They mix up with the molecules of other liquid so that they form a homogeneous mixture. वो दूसरे liquids के molecule के साथ mix up हो जाते हैं so that they can form a homogeneous mixture. For example, when a few drops of ink are added in a beaker of water. जब एक beaker जिसमें water है उसमें ink के few drops add करो तो ink molecules move around. तो ink molecules move होते हैं and after a while they spread in whole of beaker. Diffusion has taken place. Liquids diffuse like gases, but rate is very slow. Liquids with gases की तरह diffuse करते हैं लेकिन rate slow होता है. The diffusion depends on following factors. Following factors पर diffusion depend करती है. Intermolecular forces, size of molecules, shape of molecules, temperature. Intermolecular forces क्या है? Liquids having weak intermolecular forces diffuse faster than those having strong intermolecular forces. वो liquids जिनकी intermolecular forces weak हैं वो ज़्यादा तेज़ी से diffuse करेंगे. Size of molecules. Big sized molecules diffuse slowly. जितना molecule का size बड़ा है वो उतना slow diffuse करेगा. Honey diffuse slowly than that of alcohol in water. Shapes of molecule. जो regular shaped molecules हैं वो faster diffuse करेंगे than that of irregular. Because वो easily slip over करेंगे और faster move करेंगे. Temperature. Diffusion increases by increasing temperature. Diffusion increase होती है temperature के increase के साथ. Because high temperature पर intermolecular forces weak हो जाती हैं. High due to kinetic energy of molecules. Density. Density of liquid depends upon its mass per unit volume. जो density है liquid की वो डिपेंड करती है mass per unit volume पर. Liquids are denser than gases because molecules of liquid are closely packed. जो liquids हैं वो gases से ज़्यादा denser हैं क्योंकि जो molecules हैं liquid के वो closely packed होते हैं और spaces जो होते हैं इनके दरमियान में negligible होती हैं. So as liquid molecules have strong intermolecular forces, they cannot expand freely. उनका एक fixed volume है. वो gases की तरह तमाम volume occupy नहीं कर सकते container का. इस तरह से इनकी डेंसिटीज हाई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एयर की 0.001 है. इस तरह से जो ड्रॉप्स है रेन के वो डाउनवर्ड फॉल करते हैं. सॉलिड स्टेट. इट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम. कि मैटर की थर्ड स्टेट है जिसका शेप और वॉल्यूम डिफाइनाइट है. सो इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर. मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट पार्टिकल्स बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस. इंटरमोलेक्युलर फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिकल्स मोशनलेस होते हैं, वो डिफ्यूज नहीं कर सकते. सो दे पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशंस. टिपिकल प्रॉपर्टीज. सॉलिड्स एग्जिबिट करते हैं कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज. मेल्टिंग पॉइंट. सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड पार्टिकल्स में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. तो जब सॉलिड्स को हीट करते हैं वाइब्रेशन इंक्रीज होती है एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन विद हायर स्पीड. अगर हीट का सप्लाई कंटिन्यूस हो तो एक स्टेज रीच होगी व्हेन पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड बिकम मोबाइल. जो पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशंस को छोड़ेंगे और मोबाइल हो जाएंगे. इस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होता है. टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड melting temperature, melting point.
जो आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स हैं दे मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। तो तमाम सॉलिड्स का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। रिजिडिटी, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो मोबाइल नहीं होते, फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं, देयरफॉर सॉलिड्स रिजिड होते हैं स्ट्रक्चर में। डेंसिटी, सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की डेंसिटी जो लिक्विड्स और गैसेस से ज़्यादा होती है बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। Therefore they have highest densities among three states of matter। तो इनकी जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है। जैसे एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरल अपीयरेंस सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, अमorphous सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो अमorphous सॉलिड है, अमorphous मीन्स शेपलेस, मतलब शेपलेस है। Solids in which particles are not regularly arranged or the irregular shapes are destroyed are called amorphous solids। ऐसे solids जिन्हें particles arranged नहीं है, जिनकी कोई regular arrangement नहीं है या जिनकी regular arrangement destroy हो चुकी है, उन्हें amorphous solids कहते हैं। They do not have sharp melting point। इनके melting point sharp नहीं होते। Plastic, rubber and even glass are amorphous solids। प्लास्टिक, रबर और ग्लास ये तमाम अमorphous सॉलिड्स हैं, शेपलेस हैं, इनके पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनाइट थ्री डायमेंशनल पैटर्न, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज हैं, उन्हें कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके डिफिनाइट सर्फेसेस या फेसेस होते हैं। ईच फेस हैज डिफिनाइट एंगल विद अदर। हर फेस का एक डिफरेंट एंगल है दूसरे के साथ। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। एग्जांपल्स आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। एलोट्रोपी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस जो है सेम फिजिकल कंडीशन में, उसे एलोट्रोपी कहते हैं। Existence of two or more kinds of molecules of an element, each having different number of atoms, such as allotropes of oxygen are O2 and ozone O3। एक मॉलिक्यूल की दो या तीन तरह की, एक एलिमेंट की दो या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइंड्स में एग्जिस्टेंस जो है जिनके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हों, जैसे एलोट्रोप्स ऑक्सीजन के हैं O2 और O3। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, टू और मोर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की एक क्रिस्टल में डिफरेंट अरेंजमेंट हो, जैसे सल्फर एलोट्रोपी शो करता है अपनी अरेंजमेंट की वजह से। दे ऑलवेज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जो एलोट्रोप्स हैं सॉलिड्स के, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर। उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑल्सो चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड। जो उनकी अरेंजमेंट है वो टेम्परेचर के चेंज से भी चेंज हो जाती है और एक नया एलोट्रोपी बन जाता है। टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रोप दूसरे में चेंज हो उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर के नीचे जो है वो रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा जो स्टेबल है। अगर रोम्बिक फॉर्म को हीट करो तो मॉलिक्यूल्स रीअरेंज करेंगे मोनोक्लिनिक फॉर्म में। अदर एग्जांपल्स आर टिन एंड फॉस्फोरस। जो व्हाइट फॉस्फोरस है इट इज वेरी रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव, पॉइजनस और वैक्सी सॉलिड है। White phosphorus is very reactive, poisonous and waxy solid. It exists as tetraatomic molecules. ये tetraatomic molecules के तौर पर exist करते हैं। While red phosphorus जो है, red phosphorus less reactive है, non poisonous और brittle powder है।